اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ اہم فیصلہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعظم سلیمان کی شکایت وزیر اعظم کو لگائی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سلیمان کے ساتھ عملی طور پر کام ممکن نہیں رہا۔ چیف سیکرٹری کے عدم تعاون سے گورننس جیم ہو رہی ہے، جس پر وزیر اعظم نے تبدیلی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کے اعظم سلیمان انتہائی بااثر بیوروکریٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ بابر بتائے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے ضمن میں؟ دیکھیے، چیف سیکرٹری جو پنجاب تھے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان، جن کو آج عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اب ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کے یہ انتہائی بااثر بیوروکریٹ جو ہے وہ بیوروکریسی میں شمار کی جاتے ہیں اور وفاقی حلقوں میں وفاقی حکومت نے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعظم سلیمان خان جو ہے وہ پہلے بھی سیکرٹری داخلہ اور جیسے اہم ترین عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اعظم سلیمان خان کا جو تبادلہ کیا گیا ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ آج وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واضح اور دو ٹوک انداز میں وزیر اعظم کو بتایا کہ اعظم سلیمان خان کے ساتھ عملی طور پر کام اب ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور چیف سیکرٹری کے عدم تعاون سے گورننس جو ہے وہ جام ہو رہی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم قائل ہوئے اور فوری طور پر جو ہے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسران کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ طلب کیا گیا اور نوٹیفیکیشن کا جو اجرا ہے وہ کیا گیا، اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہی جو سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس پر یہ خبر سب سے پہلے نشر کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کو ذرائع ابلاغ کو جاری کیا۔ اعظم سلیمان خان کو وفاق میں اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے آج ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بابر شہزاد بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی خانہ کعبہ میں طواف شروع ہو گیا۔ طواف میں مسجد کی انتظامیہ اور خادمین شریک ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد لگایا گیا حصار بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ کلاک ٹاور سمیت اہم عمارتوں پر رمضان المبارک کے الفاظ کو اجاگر بھی کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی خانہ کعبہ میں طواف کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس طواف میں مسجد کی انتظامیہ اور خادمین شریک ہیں، جبکہ خانہ کعبہ کے گرد لگایا گیا حصار بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ فرانس میں آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد ہے۔ مقدس مہینے میں پہلی بار مساجد یا دیگر مقامات پر تراویح اور باجماعت نماز ادا نہیں کی جا سکے گی۔ صورتحال کیا ہے، ملک منیر احمد سے جانیں گے۔ منیر احمد بتائیے گا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ فرانس میں کل 24 اپریل بروز جمعہ پہلا روزہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک اس حالت میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، مسجدیں بند ہیں اور اجتماعی عبادات پر بھی پابندی ہے۔ اس رمضان المبارک کی آمد پر خوشی تو بہت ہے، جس طرح کی رمضان المبارک کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دل بہت افسردہ ہے، دل رنجیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ تراویح جو اجتماعی عبادت میں پڑھتے تھے وہ نہیں ہوں گی، جو افطاریاں لوگ احباب ایک دوسرے کو دیتے تھے وہ نہیں ہوں گی، فیملیز ایک دوسرے کو گھروں میں بلا کے افطاریاں کرواتی تھیں وہ نہیں ہوگی۔ سفیر پاکستان نے بھی پاکستانی کمیونٹی کے نام رمضان المبارک کا پیغام بھیجا ہے، مبارکباد دی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھروں میں عبادتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے منیر احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ناروے میں ہر سال رمضان کے مہینے میں باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی اور مسلمان مل کر افطاری کرتے تھے، لیکن اس بار کرونا وائرس کے باعث مساجد میں اجتماعی نماز ادا کرنے پر پابندی عائد ہے۔ تمام مسلمان گھر پر نماز ادا کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے علی فراز بھٹی سے۔ علی فراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ کل جمعۃ المبارک کے روز پہلا روزہ ہے رمضان کا، اور یورپ کے مختلف ممالک میں مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ ناروے میں بھی مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے اور کل سے جو ہے رمضان کا یہاں آغاز ہو جائے گا، لیکن اس بار
رمضان کا جو روٹین ہوگی تمام اہلیان اسلام کی، اس میں بہت زیادہ چینجنگ نظر آئیں گی۔ خاص طور پر جو بعد جماعت نماز ہیں وہ ادا نہیں کر پائیں گے مسلمان جو ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ بعد جماعت تراویح بھی نہیں، اور اجتماعی جو افطاری کے مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں اس بار وہ بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس پر مسلمان کافی زیادہ یہاں کے رنجیدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک پاکستانی بھی موجود ہیں جو اس وقت ناروے میں رہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ ہر سال جو ہے وہ رمضان کا اہتمام ہوتا ہے، آپ باجماعت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس بار کرونا وائرس کے باعث جو ہے بہت زیادہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ مشکلات کا درپیش ہے، جیسے کہ مساجد یہاں پہ بند ہیں، مساجد میں جا کے تراویح ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال کریں اور اس وبا سے ساری عالمی دنیا کی جان چھڑوائے۔ ادھر کے مسلمانوں نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا ہے کہ خدا سے ہر سال کی طرح اس سال خاص دعا کی جائے گی کہ اے اللہ یہ رمضان میں، اس رمضان کے صدقے جو ہے ہماری اس عالمی وبا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، جہاں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 25 اپریل بروز ہفتہ ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے علماء اور مساجد انتظامیہ سے اپیل کی کہ صدر پاکستان کے 20 نکاتی منشور پر عمل کریں کہ کسی بھی مقام سے رمضان قبول شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان کی تمام مساجد کے ائمہ کرام، خطباء کرام اور مساجد کی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی نے جو 20 نکاتی SOP یا منشور جاری کیا ہے، ہم سب سمیت آپ سب پر اس SOP کی پابندی لازمی ہے۔ اور آج سندھ میں دوپہر 12 سے 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ شہری نماز جمعہ گھروں میں ادا کریں گے۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ سندھ بھر میں دوپہر 12 سے دوپہر 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا اور شہری نماز جمعہ گھروں میں ہی ادا کریں گے، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ آزاد نوڑیو، بتائے گا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل، سندھ سرکار نے آج جو ہے 12 بجے سے 3 بجے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے 12 بجے سے 3 بجے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا خطبہ بھی ہوگا اور بعد جماعت نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 5 افراد جو نماز جمعہ جو ادا کر سکیں گے، اور مکمل طور پر موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ سندھ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے تحت 3 گھنٹے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہے گا، اور جو 3 بجے کے بعد شام 5 بجے تک جو روزمرہ کی اشیاء کے فروغ دکانیں ہیں وہ بھی کھلی رہیں گی۔ کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اہم اعلان بھی کریں گے، جو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار ہے، اور کچھ دیر وزیر اعلیٰ سندھ اہم اعلان بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے آزاد نوڑیو، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ اور ملازمین میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ملازمین نے یوٹیلیٹی سٹورز کو آج سے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بورڈ نے ملازمین کے جائز اور بنیادی حقوق ماننے سے انکار کر دیا۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملازمین کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا اجلاس چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز ذوالقرنین علی خان کی سربراہی میں ہوا، جس میں ملازمین کے مطالبات پر غور کیا گیا۔ تاہم بورڈ نے ملازمین کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے۔ آل پاکستان کے یوٹیلیٹی سٹور، ویئر ہاؤسز اور تمام دفاتر جو ہے نا وہ صبح لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جو ہمارے مطالبات پچھلے 3 دن سے چل رہے تھے مینجمنٹ کے ساتھ
मैनेजमेंट में उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया है। यूटिलिटी स्टोर्स मजदूर यूनियन के सरबराह आरिफ शाह का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के एमडी और चेयरमैन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आज से मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे। हमारे बोर्ड ने इंतहाई बेहसी का मुजाहरा किया है। हम इतने दिनों से इनके पास अपने हकूक़ के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जायज़ हकूक़ देने से इनकार किया है। तमाम यूनियन ने मिलकर ये फैसला किया है, जब तक हमारे मसाइल आने में लेटर नहीं दिया जाता उस वक्त तक तमाम मुल्क के स्टोर, दफातर, वेयर हाउस बंद रहेंगे। जिस दिन हमें लेटर देंगे उसी दिन हम खोल देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में 1 जुलाई 2019 से इजाफा किया जाए। तमाम डेली वेजेस और कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुआहदे के मुताबिक रेगुलर, सेल्स स्टाफ और वेयर हाउस मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती किट्स भी फराहम की जाएं। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आईसीसी वीडियो लिंक चीफ एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस बगैर किसी बड़े फैसले के ख़त्म हो गई। आईसीसी वर्ल्ड T20 और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रीशेड्यूलिंग पर सूरत के मुताबिक जायज़ा लेते रहने पर इत्तफाक किया गया है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आईसीसी वीडियो लिंक चीफ एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस बगैर किसी बड़े फैसले के ख़त्म हो गई है। उधर कमिश्नर हाउस कराची में वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी की ताजिरों के साथ बैठक हुई। हुकूमती वज़रा और ताजिरों के इजलास में पीर से छोटे ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त देने की यकीन दहानी करवाई गई। कमिश्नर हाउस कराची में वज़ीर आला के कायम करदा कमेटी का छोटे ताजिरों के साथ इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, इम्तियाज शेख, मुर्जा वहाब, सईद गनी ने शिरकत की। इजलास में ऑनलाइन कारोबार का तरीक़ाकार तय किया गया। छोटे ताजिरों को पीर से ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त होगी। दुकानें सुबह 9 तक 3 बजे दोपहर तक खुली रहेंगी। दुकानों में गाहक डील करने की इजाज़त नहीं होगी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना था कि ताजिरों और सिंध हुकूमत में इत्तफाक राय हो गया। दुकान के अंदर सिर्फ एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। दुकानों के शटर सिर्फ डिलीवरी और प्रोक्योरमेंट के लिए खोले जाएंगे। फरोख्तशुदा सामान की घरों पर डिलीवरी दी जाएगी। डिलीवरी के लिए लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ को भी इजाज़त होगी। ताजिर रहनुमा जमील पराचा, हबीब शेख, रिजवान इरफान, शर्जील गोपलानी, सलीम मेमन, इलियास मेमन और हकीम शाह ने इजलास में शिरकत की। कोरोना के बायस लॉकडाउन से शहर काद में मुकीम कश्मीरी शदीद ज़बूहाली का शिकार हैं। उन्हें कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अली खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अली खान, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के वासियों के साथ। जानते हैं इनसे कि इस वक्त इनको क्या परेशानियों का सामना है और इस वक्त इनकी क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरीके से। जी बताएं। जी, मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद से। मैं ख़ासकर वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर साहब हैं, कम से कम उनको अपने कश्मीरियों का एहसास होना चाहिए। उन्होंने ना कोई ख़बर चलाई है, ना कोई मतलब बयान आया है, ना कोई पता है। इधर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी फंसे हुए हैं। और दूसरा, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप भी सोचें इन कश्मीरियों के बारे में। से कम महीने से ज़्यादा हो गया है, लॉकडाउन है, यहाँ पे मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं हमारे लिए। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने दरख्वास्त की वज़ीर आला सिंध से और कैबिनेट से कि किसी तरीके से भी जो है वो हमारे वापसी का इंतज़ाम किया जाए, चूँकि लॉकडाउन पिछले 1 महीने से जारी है और इनके तमाम कारोबार, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। इस वक्त महंगाई भी जो है वो अरूज पे पहुँच चुकी है और ये अपील कर रहे हैं तमाम तर आला हुकाम से कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ से वापस भेजा जाए, टेस्ट करा के, और यहाँ से इनकी ये परेशानी हल की जाए। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा आदादोशुमार जारी किए हैं। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,057 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 544 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। 11 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। कुल हलाकतों की तादाद 235 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानेंगे सबा बजीर से। सबा बजीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में तेजी से कोरोना के पेशेंट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिए हैं और मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है। और इस वक्त मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद भी 8,260 तक है। मुल्क भर में अब तक 2,337 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए हैं और पंजाब में 790 और सिंध में अब तक 715 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि मुल्क में
कोरोना के मरीज जो हैं वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 414, गिलगित बल्तिस्तान में 201 और बलूचिस्तान में 168, आज़ाद कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 26 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 302 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है सबा बजीर, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगले 15 दिन बहुत मुश्किल हैं, इनमें लॉकडाउन सख्त करेंगे। बड़े इज्तिमा से गुरेज ना किया गया तो ये वबा बड़ी तेज़ी से फैलेगी। नहीं चाहते कि हमारा निज़ाम सेहत तबाह हो जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत से भी बात हुई है, उन्हें मसाजिद के हवाले से किए गए फैसले पर बहुत अच्छी तरह समझाया। अवाम रमज़ान में घरों में ही इबादत करें। मुराद अली शाह की जानिब से वीडियो पैगाम दिया गया है जिसमें उनका ये कहना है कि अगले 15 दिन बहुत मुश्किल हैं और इनमें लॉकडाउन सख्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रात को लेट आप सबको तकलीफ़ दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। अगर बड़ी जगह बड़े इज्तिमात को कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी और फिर अस्पताल इस मर्ज़ के लिए जो हम फ्रंट लाइन अपने डॉक्टर्स कहते हैं वो भी बेबस हो जाएंगे। छोटे ताजर थे, उनके साथ भी बात की और उन्हें इस बात पे एग्री कराया है और उन्होंने खुद एग्री किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन यानी होम डिलीवरी होगी दुकानों पे। सदर पाकिस्तान से बात करने के बाद मैंने फिर डॉक्टर हजरात से सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं। इस वजह से हमने जैसे दुकानों का फ़ैसला किया, बड़े स्टोर्स को बंद किया। हमने कहा कि जी मसाजिद वैसे ही खुली रहें जैसे पहले थी, मसाजिद में अज़ानें भी हों। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज पढ़ें। कल इंशाअल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी। उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मस्जिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोगों में तरावियाँ पढ़ें। हाफिजाबाद में एहसास प्रोग्राम के शफाफ होने पर सवाल उठने लगे हैं। कई एकड़ ज़रूरी रकबे का मालिक ज़काउल्ला एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये लेने एहसास सेंटर पहुंच गया और बायोमेट्रिक से रकम वसूल करके लहरा कर सिस्टम का मजाक भी उड़ाता रहा। दूसरी जानिब ख़वातीन इमदाद से महरूम रह गईं। हाफिजाबाद में एहसास प्रोग्राम की शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। मियाँ मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मियाँ मज़हर, बायोमेट्रिक से ये रकम दी जाती है तो क्या तमाम डेटा मौजूद नहीं होता? जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन की वजह से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी मुस्तक अफराद को 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आज ये हाफिजाबाद के नवाई गांव तवेले वाली का रैशी ज़काउल्ला भट्टी, जो कि दर्जनों एकड़ अराजी का मालिक बताया गया है, अपनी जाती गाड़ी पर एहसास प्रोग्राम के रकम वसूल करने एहसास रकम तकसीम सेंटर पहुंच गया। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि बायोमेट्रिक के बाद रकम वसूल करके पैसे लड़ा कर एहसास प्रोग्राम की शफाफियत और अहलियत का मुंह चढ़ाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चलता बना। मालदार और साबे हसीयत अफराद की जानब से रकम वसूली की से गरीब खवातीन और अफराद सरापा एहतजाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ मज़हर, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। 2 रोज कबल ताजरों ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की और अगले ही दिन लॉकडाउन तोड़ दिया, जिस पर सईद गनी ने कहा कि ताजरों को उकसाया जा रहा है। खुर्रम शेर जमान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर से भी मुलाकात की है। क्या गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी लॉकडाउन तोड़ेंगे? एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैलने का खदशा है तो दूसरी तरफ सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी में सियासी कशमकश जारी है। 2 रोज कबल ताजरों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की और अगले रोज दुकानें खोली, जिस पर गिरफ्तारियां हुई। इस पर सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने रद्द अमल दिया कि ताजरों को उकसाया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फजूल बातों का हमने जवाब ना देने का फैसला किया हुआ है, हम नहीं देते हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसका फैसला आवाम करे, उसका फैसला आप करें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन उन सही बातों को बिला जवाज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी तरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान से मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा सूबाई वज़रा को ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं। सिंध हुकूमत का जो रवैया है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जालिमाना होता जा रहा है। हमने ये पहले भी बात की कि जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात के अंदर आपने वज़ीर आला साहब कोई नरमी का रवैया रखना है। इस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने रद्द अमल दिया कि हमने अवाम के मफाद में फैसले किए, लेकिन एक सियासी जमात लोगों को वरगला रही है। ऐसे गलत हरकत से रियासत की रिट कमजोर होगी। वज़ीर आला सिंध ने कुछ SAPs को मुतय्यन करने के लिए टास्क अपने वज़रा को दी कि इनके साथ बैठकर चीज़ों को फाइनलाइज कर लें। अभी हम फाइनलाइज कर ही रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उस चीज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उस चीज़ को खराब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ माहौल खराब हुआ। यहाँ सवाल है कि जिस तरह गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद ताजरों ने लॉकडाउन तोड़ा, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी अब लॉकडाउन तोड़ेंगे? क्या हुकूमत रिट की खिलाफ वर्जी और इसकी पुष्ट पनाही जायज है? उधर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। रमजान में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। हमजा शफकात का कहना है कि आने वाले दिनों में 200 से 600 केसेस बढ़ सकते हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना से बचाव के लिए इकदाम उठाए गए, ताहम आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में 200 से ये नंबर 600 में चला जाएगा। बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें फैल रही हैं, तो इस सब में हमारा यूनाइट होना, हमारा मिल के इस वायरस से जंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बार बार मेरे से राब्ते में रहना, मेरी तस्दीक करते रहना पूरे शहर की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीब से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर चौधरी जावेद भागट, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, साबिक सदर प्रेस क्लब शकील अंजम और सेक्रेटरी फाइनेंस चौधरी सगीर अहमद ने सहाफ़ियों को दरख्वास्त की कि वो खबर को पेशेवराना अंदाज में और तमाम फ्रीकैन के मौक़िफ़ के साथ फाइल करें। खामोश कलम के जरिए अपने दोस्तों तक वैसे पहुँचाते रहते हैं, उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन हमारा पैगाम ज़रूर होता है। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। खबरों पर हमारा उनके साथ क्लैश होता है। सिर्फ छोटी सी बात ये कहूँगा खबरों के हवाले से कि आपका प्रोफेशनली क्लैश होना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म इस तरह से पैदा करना चाहिए कि वो जो क्लैश है वो प्रोफेशनली हो, ज़ाती ना हो। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहर में जराइम की रोकथाम और अमन अमान के लिए सहाफ़ियों के किरदार को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर क्राइम रिपोर्टर्स को पावर बैंक भी तकसीम किए गए। और इस बुलेटिन से इतना।